नजरें तो मिला लीजिए। Good morning, everyone. Myself, Snigdha, on behalf of Dr. B.R. Ambedkar University, extends a very warm welcome to all of you to the inaugural function of Shodhotsav 2023. Shodh and Utsav denote distinct messages and roles for our shaping of our societies. Shodh leads us towards progress, understanding, and discovery, while Utsav offers moments of happiness, collectivity, and cultural appreciation. It's a special occasion for all of us as we gather here to celebrate our commitment and passion for research, guided by the engagement which is multidisciplinary and grounded in nature. Research Festival has been diligently instituted to encourage and acknowledge the contributions, value propositions, and knowledge exchange as represented by our university's ideals of engaged scholarship and social integrity. With these words here, we proceed on to our ritual of initiation, the Diya lighting ceremony. It is my pleasure to invite and request our dignitaries, Honorable Vice Chancellor Professor Anu Singh Lathir ma'am, Guest of Honor Sri Raghurai ji, Registrar Sir Dr. Nitin Malik, Dean RNC Professor Babu Ramesh, Chair Shodhotsav Committee Dr. Parag Vaknis, to light the diyas and initiate the function. देखिए, दिया जलाना जो हमारी संस्कृति में है, जोत जब जलती है तभी। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि जोत जलती है तो उसमें आग में प्योरिटी स्पेस में क्रिएट होती है, और जब प्योरिटी क्रिएट होती है तो उसमें डिवाइन आके रहते हैं। कितनी सुंदर बात कि आग से प्योरिटी जो होती है उसमें डिवाइन उतर आते हैं। इसीलिए ज्योत हमारे जीवन में हिंदुस्तान में बड़ी कीमती चीज है। सिख भी जलाते हैं, मुस्लिम भी जलाते हैं, सभी जलाते हैं, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। सारे आप ही जलाएंगे? इतना उसका महत्व बता दिया तो मेरे ख्याल से मैं ही उसका पुण्य मैं ले लूं। उसका पुण्य तो ले लूं सर। Thank you so much, sir, for your kind words. Let us use this opportunity of invocation ceremony to ascertain the flames of unity, compassion, and warming up of spirits. Taking the agenda further, may I please invite Professor Babu P. Ramesh, Dean Research and Consultancy Division, for his opening remarks on our university's endeavor on research through Shodhotsav 2023. Good morning, everyone. Respected guest of honor and speaker of today, Padma Shri Raghurai ji, respected Vice Chancellor of the B.R. Ambedkar University, Delhi, Professor Anu Singh Lathir, Dr. Parag Vaknis, the Chair of Shodhotsav 2023, my dear colleagues, research scholars, and other invited guests. As Dean Research and Development, I would like to welcome all of you for this third edition of Shodhotsav. A good morning, very good morning to all of you to this annual research festival of Ambedkar University, Delhi. In the past few years, Ambedkar University has been working on various activities that strengthens the research base of the university. I would like to highlight some of these activities, which include Institution of Research Publication Awards for the faculty members, which promotes quality publication in good journals of repute.
We were also like for the research scholars of the university, we were funding or we have instituted a new set of fellowship called AUD MRF fellowships, which is a fully funded doctoral research fellowship where around 100 students are getting. Right now, we are having 31 students. We are planning to give this fellowship to 100 students, and these fellowships are on a par with UGC research fellowships. The university is also funding many research projects for the faculty members under its various schemes. The most important thing is a seed money research grant program that we have initiated few years before, which has brought in lots of new research from the faculty members. In addition to these things, university has also been holding many activities including workshops, seminars, specified courses on research methodology and all for strengthening the research base of the university. So celebrating Shodhotsav as a regular feature is also a new addition into the AUD's academic and research calendar. This is the third edition of Shodhotsav. The first and second Shodhotsavs were held in 2020 and 2022 under the leadership of my predecessor, Professor Geeta Venkataraman, and her team, with the leadership and guidance of Vice Chancellor, Professor Anu Singh Later. It's a matter of pleasure and pride for all of us that we got one of the most appropriate speakers for today's inaugural ceremony. Padma Shri Raghurai ji doesn't require any special introduction. His lens has shown us different facets of India for the past several decades. His photographs on Bangladesh war in 1971 was an eye-opener to all the people who are working on photography and visualizing social change. And we all know that immediately after these words, he was honored with Padma Shri in 1972. I'm not taking more points from Snigdha, but I am very prompted to tell certain things related to his words. His searing images of Bhopal gas tragedy, it is still in our mind. The burial of an unknown child, which was shot in 1984, and the latest one, sack of full skulls, a sack full of skulls in 2001. All these remain in our minds very lively, and these are powerful reminders of human-made, the world's greatest ever human-made industrial disaster. Through his lens, we have seen personalities, musicians, celebrities, including Mother Teresa, His Holiness Dalai Lama, Indira Gandhi, Ustad Bismillah Khan, and many others. He has shown us Regularize India through his detailed photo books, which inter alia shaped our own understanding of India to a greater extent. There are many persons who have done research in their own respective fields of action. While watching the films of Satyajit Ray, Vittoria De Sica, Majid Majidi, or Charlie Chaplin, we realize how these filmmakers use film as a media to understand and respond to their contemporary social world. Similarly, illustrations and cartoons of R.K. Lakshman or literary works of Premchand, Tagari Shivashankara Pillai, Khalid Hosseini, all these show us the depth of their understanding of social issues. All of them are researchers of social realities in their own respective fields. Learning from uh, these stalwarts from other fields is also an integral part of promoting and strengthening research in our own academic areas, especially when we are concerned with holistic understanding and interdisciplinary research. It is with this understanding we have invited Padma Shri Raghurai ji here amongst us. Thanks, sir, for accepting our invitation, and we look forward to learn from you about how you understood the world around you through camera, what were the challenges in the field as a photographer, how you addressed ethical issues confronted during your work, and how you upheld humanitarian values while engaging with the society as a photographer, and so on.
He expressed his emotions only through the camera. Even with me, and I experienced life through his images. These are the words of Avani Rai, daughter of Raghurai ji, when she gave an interview to media after completing her film on her father titled Raghurai, The Unframed Portrait. As a person who expressed his feelings through photography, we are sure that we are going to learn quite a lot of things from you, sir, today from this brief talk. With these words, let me conclude my opening remarks. Thank you. Thank you so much, sir. The reason for this gathering, the motivation for this deliberation, the acknowledgement of perspective has the perfect placement here through our guest of honor, Sri Raghurai ji. It is always a difficult task to introduce someone of his stature, but we will still provide a humble attempt on listing down his contributions and life journey milestones. Raghurai was born in December 1942, qualified as civil engineer, started photography at the age of 23 in 1965. He joined the Statesman newspaper as their chief photographer and was then the picture editor with Sunday, a weekly news magazine published from Calcutta. He also completed a Thomson Fellowship in England, worked for the Times London, got a job offered by picture editor Norman Hall, but he preferred to return to his homeland for further intellectual pursuits of his. Raghurai was also nominated by the legendary photographer Henri Cartier-Bresson to Magnum Photos, the world's most prestigious photographers cooperative that he continues to enlighten. Rai took over as picture editor, visualizer, photographer of India Today, India's leading news magazine, contributing trailblazing picture essays from 1982 to 1991. His series on great masters of Indian classical music, Satyajit Ray, Mother Teresa, had become the talking point of not just the magazine, but the complete array of social geographies around us. He was awarded the Padma Shri in 1972, the highest civilian award ever given to a photographer, for the body of works he produced on Bangladesh refugees during the wartime, of course. In 1992, he was awarded Photographer of the Year in the United States for his story, Human Management of Wildlife in India. Look at the range of the works and the coverage of the issues that he has presented through his works. This work was published in National Geographic. In 2009, he was conferred Officer des Arts des Letters by French government and Lifetime Achievement Award in 2016 in India. In 2018, he was honored by Lucy Foundation, New York, as Master of Photojournalism. His photo essays have appeared in many of the leading magazines and newspapers, including Time, Life, Geo, Die Welt, the New York Times, the Sunday Times, Newsweek, Vogue, Marie Claire, The Independent, and The New Yorker. His sensitive, extensive documentation of 1984 Bhopal gas tragedy and its continuing effects on the lives of victims was a special assignment from Greenpeace International. It got compiled in a book and had multiple exhibitions spread through Europe, America, and South Asia during 2002 to 2005. In 2012, Raghurai created the Raghurai Center for Photography to share his immaculate wisdom, experience, and knowledge earned over 50 years of his hard work. He's also the only photographer in the world who got awarded by Académie des Beaux-Arts Paris Awards in 2019. His numerous picture books on World Heritage sites, such as Khajuraho, Taj Mahal, Vijayanagar, Ajanta and Ellora caves are a rare treat for people. Raghurai lives in New Delhi with his family and is currently working on his 60th publication. So his works update, his creative eye, his engagement with the social issues, and the melodies of representation are an absolute delight to witness. With this humble note on his life history and achievements, would like to request our Honorable Vice Chancellor Ma'am to kindly felicitate him and honor his works and presence. जी हाजिर हो वाह ये देखिए These were the magnificent men.
their times. Yes. We had at that time. Cheers. Thank you. And two good books for you to read. Very good. जी, thank you so much. ये आपके नीचे क्या बुक से? Wealth of Nations by Adam Smith. Another one is Tales of India. Thank you. Thank you, ma'am. We also take this opportunity to facilitate our Vice Chancellor, ma'am, and Registrar, sir, requesting Professor Babu to present a potted plant and a souvenir of respect to Vice Chancellor, ma'am, who's been the driving force behind the event. This has come as a surprise. Wow. It goes well with your color scheme. Thank you, sir. Also requesting Dr. Parag to felicitate our Registrar, sir. This I should give it to Thank you, you, your sir. team. I take it and give it to the committee because they have done a fantastic job for this Shodhotsav. Thank you. Thanks from the team. Thank you, everyone. May I now invite Dr. Parag Wagnis, Chair Shodhotsav 2023, to share the focal emphasis and the lineup of events in the month-long celebration during Shodhotsav. Sir. Thank you, Dr. Snigdha. I'm going to be very brief. I know there are a series of talks, and we are all waiting to listen to Mr. Raghuraji. So good morning again, Honorable Vice Chancellor, Professor Anu Singh Lathar, Registrar Dr. Malik, Padma Shri Raghuraji, Professor Babu, Dean Research and Development, all my colleagues here, friends, staff, research scholars, students, welcome again to Shodhotsav 2023. So this is the third edition of Shodhotsav that we have. So as an organizing committee, we have planned a series of talks, conferences, workshops, and displays of research at AUD, the beginning of which is this inaugural event that we have. So as we work year-round, teaching courses, meeting publication deadlines, mentoring research scholars, and doing our administrative jobs, Shodhotsav provides a platform for all our work, and it also kind of provides a window for the broader academic community to what is happening in terms of academic activities in our university. So we have two conferences. The first one would be between August 22 and 23. Which is the National Conference for Young Scholars. So this is for the research scholars. There are research scholars from AUD and research scholars from outside AUD as well. They will participate in this. The theme of the conference is basically understanding the social theories, methods, and practices. So this is on August 22nd and 23rd. This will be in Kashmiri Gate campus of the university. Then on August 31st and September 1, we have Faculty Research Conference. So this would be G20 Research Conclave. The theme is Knowledge Exchange in a Globalized World. Here, basically, faculty from AUD who have been working on various projects funded by AUD and by themselves as well, along with faculty from outside of AUD will present their research. Keeping with our focus on internationalization, we also have Fulbright scholars associated with AUD presenting during these two conference events. So that's an additional thing this time. Keeping with the focus on internationalization, this
edition of Shodhotsav will also see the inaugural monthly colloquium, monthly research colloquium, which is going to be organized by Dr. Dheeraj Nite, which will see involvement of research scholars from abroad as well as from India. So the first lecture is going to be held on August 25. This is going to be a special webinar by Professor Rolf Torstendal. He is from Department of History, Uppsala University, and he's going to speak on engineers and their knowledge, theoretical incentive, and profession making knowledge in Europe and beyond. So this is going to be the inaugural of the monthly colloquium, and we will have every month some or other talk that is going to be there. We will end our month-long Shodhotsav with a valedictory function on September 5th, 2023, when we will also present the research awards along with basically research awards. That's the ceremony. That would be the conclusion of our month-long research festival. So I welcome you again. Without further ado, I think I will stop talking and make it way for our chief guest today. Thank you so much, Dr. Faral. Looking at the conversations of Raghurai and his immaculate body of work on the internet, I found few phrases that were used by him, that were used for him. I'm sure these only represent a slice of depth that his creative artworks are inspired by. The phrases go something like this: the internal substance that one is constituted of, close, intense quarters and the worldview, content and creativity as his religious investment, sensing the divine rhythm, more than full frame, framed slice of life, photography as fire and soul work, understanding the vibrations of people and moments, photographer as a clean mirror. He has always regarded the artworks as medium of communication, also deciphering silences and chaos for humanitarian concerns. So without any further delay, I would like to invite our guest of honor, Sri Raghurai ji, for delivering his special talk, Lens on Life, Exploring Social Realities Through Photography. We welcome you, sir. Thank you. Can I do it from here? आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा। हाँ, क्योंकि मैं भाषण देने वालों में से नहीं हूँ। मैंने सबको ये तो किया था, गुड मॉर्निंग थोड़ा विलायती हो जाता है, नमस्कार एक तरह का हो जाता है, आदाब दूसरी तरफ का हो जाता है। तो ये प्रथा तो हम हिंदुस्तानियों में सब में है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो सबसे बड़ा धर्म ह्यूमैनिटी में इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा धर्म देश धर्म है। तीसरा धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं। चौथे पे मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि ये पैंडेमिक ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई और बहुत सारा, मैं किताबें तो पढ़ता नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ, मतलब इतना भी मत समझिएगा, मैं सिर्फ एक किताब जब से शुरू किया पढ़ रहा हूँ, जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, और वो किताब है ज़िंदगी की, नेचर की। हर सुबह जब मैं उठ के कैमरा हाथ में लेता हूँ, या इवन घर में बच्चों के साथ, ऑफिस में, एवरीवेयर, मैं पढ़ता रहता हूँ ज़िंदगी को। जी मैं आगे हो जाता हूँ। तो ये किताब जो है ना कहीं शुरू होती है ना ख़त्म होती है, और हर बार नए दर्शन देती है। बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी ज़िंदगी और उनकी स्ट्रगल तो किसी भी फ्रीडम फाइटर, किसी भी विजनरी से बहुत अलग है। और वो बातें याद करके दुख होता है
कि हम ऐसे थे और अभी भी हम कितने बदले हैं, ये एक और मामला है। तो हमारी सोसाइटी में ये लेवल्स जो हैं अभी भी ख़त्म होने को नहीं आ रहे हैं। पर जैसे उन्होंने खोज की कि वाई ही इज़ लाइक दिस, वाई पीपल आर लाइक दैट टू हिम, और इवन महात्मा गांधी बापू की जो उनकी खोज थी कि जो बैरिस्टर बन के हिंदुस्तान में आए तो भारत दर्शन पे निकले, जानने के लिए, खोज करने के लिए कि आज भारत कहाँ है, हम कौन हैं, हम कैसे हैं। तो जब मैंने न्यूज़पेपर के साथ काम करना शुरू किया, एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने कैमरा उठाया, आँख पे लगाया, तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि भाई तू इसमें से देख के क्या देखेगा, क्या ढूंढेगा, क्या करेगा। तो मेरी आंखें ऐसे खुलने लगी, ऐसे, आप देख रहे हैं, ऐसे खुलने लगी। तो मैं कैमरा में से ऐसे देखता था और ढूंढता था। क्या ढूंढता था? उन सालों में तो मैं शायद आई कुडंट हैव पुट इट इन वर्ड्स कि मैं क्या ढूंढता हूँ, पर इतना बता दूँ यंग माइंड्स के लिए, पाता वही है जो ढूंढता है। सभी को नहीं मिलता है। Nobody is the chosen one, please. पर जो ढूंढता है, who's an explorer, who loves life and nature, nature begins to reveal itself. मैंने ये देखा कि नेचर जो है वो रिवील करने लगती है, क्योंकि, और दूसरा मैं ये मानता हूँ कि जो मैंने ज्योत के बारे में कहा कि डिवाइन जो है उसमें आके बसता है, तो जब हम अंदर की ज्योत जला सकते हैं तो डिवाइन जो है begins to speak to you, work for you, because you are not a separate entity anymore. मैंने कोई ज्ञान की किताबें नहीं पढ़ी हैं जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन जिंदगी की किताब ने मुझे ये सिखाया और सिखा रही है। हमारे हिंदुस्तानी में एक शब्द है दर्शन पाना, और वो बड़ा हम रेयरली वैसे यूज़ करते हैं कि आपके दर्शन पाके बहुत अच्छा लगा, और वो मैं तो एटलीस्ट बहुत कम यूज़ करता हूँ, कि मेरे लिए दर्शन जो है, टू एक्सपीरियंस, टू फील, टू अंडरस्टैंड द पर्सन एंड इट्स ऑरा इज दर्शन। देखना अलग चीज़ है, दर्शन अलग चीज़ है। तो जब मैं कैमरा अपनी आंखों पे लगाता था तो मुझे ज़िंदगी के दर्शन होने लगे। मुझे याद है 70s में एक फ्लैश फ्लड्स आए थे जयपुर में, तो क्योंकि मैं न्यूज़पेपर के साथ था तो हमें बहुत प्रिविलेजेस भी होते थे, इन द सेंस कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रेस वालों को इनवाइट किया, स्पेशल हेलीकॉप्टर में वो हमें ले गए दिल्ली से जयपुर, क्योंकि रास्ते जो थे वो फ्लडेड। तो हम कोई 8-10 जर्नलिस्ट फोटोग्राफर्स गए, तो मैं तो पहली बार, देखिए प्लेन में उड़ना is another matter because you are flying at 33,000 feet and above, but when you are flying in a helicopter you are so close to planet Earth कि उसकी डिटेल्स भी दिखाई देती हैं। तो मैं तो पागलों की तरह फोटोग्राफी करता गया, और फिर वहाँ पे पहुँचा, फ्लड सिचुएशन की, फिर वापस आ रहे थे, फिर से वही हुआ। तो मैं वापस आया, मुझे 2 तस्वीरें देनी थी अखबार में, पर रात के 12 बज गए। मुझे ऑफिस में तो घर से फ़ोन आया कि क्या हो गया,
अभी तक घर नहीं आए। मैंने कहा यार मुझे धरती के दर्शन हो गए। ये देखिए कि मुझे धरती के दर्शन हो गए और मैं प्रिंट बना रहा था उस दर्शन के। अब ऐसा है कि डिविनिटी और दर्शन हिसाब किताब की चीज नहीं है। वो विस्पर्स में आते हैं, वो नजेस आती हैं, हे वेक अप, हियर आई एम फॉर यू। बस इतनी सी बात है। आप रिस्पॉन्ड करें तो आपका है, नहीं तो आया और चला गया। और वो किसी की वेट नहीं करता, बिकॉज यू हैव टू मेक योर सेल्फ अवेलेबल मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। और दूसरे एक बात मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि आजकल धर्म पे बहुत कुछ हंगामे हो रहे हैं। मेरे गुरुजी हैं जो आज भी हमें मैसेजेस भेजते हैं, कनेक्ट करते हैं। ऐसे पावरफुल गुरु क्या भगवान समान हैं कि जो आप कहानियाँ ग्रंथों में पढ़ते हैं कि उसने वहाँ बैठे, जैसे महाभारत में वो उनको युद्ध दिखा सकते हैं कौरव्स को कि देखो वहाँ ये चल रहा है, वो चल रहा है। हमारे गुरुजी बैठे बैठे कहेंगे अरे रघुराय वहाँ भाषण में अब उसको लेक्चर दे रहा है, जब काम ख़त्म कर ले तो उसे कहना मुझसे बात करेगा। ऐसी बातें हमारे गुरुजी करते हैं। तो गुरुजी के करीब जब मैं जिया तो मैंने भगवानों को, क्राइस्ट को, अल्लाह को, गुरु नानक को समझने की कोशिश की कि धर्म क्या चीज़ है। तो वो लोग, वो महापुरुष, वो संत लोग जो आए, जिन्होंने हमें छुआ और हील कर दिया, जिन्होंने हमसे बात की और हमें एक नई दिशा मिली, वो अगर भगवान होते तो जाते नहीं, मरते नहीं। वो सेंटली सोल जो थी, they were connected with the supreme energy because they were pure souls, so the supreme energy will work through them. Good conductors of divine energy, of supernatural. और ये privilege हम सबके पास है अगर हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो वो जो डिवाइन एनर्जी जो है, जो सबके लिए, जो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख ईसाई है, अब आप अल्लाह के नाम पे कर लें, गुरु नानक के नाम पे कर लें, बुद्ध के नाम पे कर लें, किसी के नाम पे कर लें, वो आपकी मर्जी है। पर ये मैं दावे से कह सकता हूँ, ना राम आने वाले हैं, ना बुद्ध आने वाले हैं, ना क्राइस्ट आने वाले हैं, ना प्रॉफिट मोहम्मद आने वाले। वो आए चले गए, लेकिन वो भी कहते हैं अल्लाह। अल्लाह इज़ नॉट प्रॉफिट मोहम्मद। हम भी कहते हैं ईश्वर। सिक्खी में भी वो अल्टीमेट डिवाइन को, जो फॉर्मलेस है, उसकी बात करते हैं। हम सब मानते हैं कि ये हमारे महापुरुष थे जो चले गए, लेकिन उनसे आगे जहाँ और भी हैं, और वो डिविनिटी हम सबको अवेलेबल है। और जो ढूंढता है वो पाता है, जो कनेक्ट करता है उसको दर्शन होते हैं। तो मैं फोटोग्राफी के माध्यम से मैंने जो दर्शन पाए हैं ज़िंदगी के और पा रहा हूँ, मैं इतना आनंदित होता हूँ कि कई दफ़े मैं सड़कों पे नाचता हूँ खुशी के मारे। हमारा, हम जो कहते हैं ना निर्वाण, निर्वाण जो है वो अल्टीमेट स्टेज है। पर अभी तो कैमरा हाथ में और मैं आनंदित दीवानों की तरह नाच सकता हूँ। और थैंक्स टू माय धर्म,
मेरा धर्म है फोटोग्राफी। क्यों कि इसने, मैं कहा ना कि मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ, इसने मुझे ज़िंदगी की गहराइयाँ, ज़िंदगी की लेन्स और बाई लेन्स में ले लेके घूमा मुझे और कहा कि देख ले बच्चे, ढूंढ ले। अब एक बात जो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वो जो डिवाइन फादर है ना, जो हम सबको कॉमन है, बड़ा ही रिच पावरफुल डिवाइन फादर है। उसके घर में खजाने रखे हैं, खजाने, लूटने वाले नहीं हैं। हम एक हद तक जाते हैं, कहते हैं यार कर तो लिया, और कितना करना है। वो हंसता है, अरे पगले, मैं आपको बताऊं, मैंने कई बड़े बड़े पुरुषों से बहुत कुछ सीखा है। उनमें मदर टेरेसा भी थी, जो अल्बेनियन नन थी और इंडिया में आके हमारी माँ बन गई। Buddhism was almost dead in India, born in India, brought up in India and went to Southeast Asia, but was dead in India for all practical purposes. His Holiness Dalai Lama brought it back in a living shape. अगर आज इस प्लेनेट पे कोई होलीएस्ट पर्सन है तो हिज होलीनेस दलाई लामा है। कभी कोई आप में से जो उनको मिला हो तो यू मस्ट हैव फेल्ट दैट डिवाइन एनर्जी। और कहते हैं जब वो मेडिटेशन में होते हैं तो उनका ऑरा जो है 2-2, 3-3 किलोमीटर तक वाइब्रेशंस रखता है। और मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ कि जब भी वो मुझे मिलते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, मैं उनका हाथ चूमता हूँ, फिर वो मुझे, ही पुल्स मी इन, माई हेड गोज ऑन हिज शोल्डर, ही पुट्स हिज हेड ऑन माई शोल्डर एंड ही हग्स मी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई गो, द एनर्जी, द पावर आई रिसीव। मदर टेरेसा के साथ भी मेरा बहुत प्यार था, हमारे गुरु जी के साथ, मेरे साथ प्रमुख स्वामी जी और जैन मुनि, सबके साथ मैंने काम किया है। शायद मेरे अंदर की प्यास और भूख जो है वो डिविनिटी से पूरी होती थी। एक दफ़े मेरी बीवी गुरमीत राय, शी इज़ एन कॉन्जर्वेशनिस्ट, वेरी डेडिकेटेड। इसी तरह हम निकले हिज होलीनेस को मिलके और उन्होंने बड़ा प्यार दिया। तो मेरी बीवी कहती, क्या है तुम में यार कि तुम्हें ये सब इतना प्यार देते हैं। तो मुझे सोचना पड़ा कि बीवी है, कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, और लंका तो ढह रही थी। अब लंका ढह रही थी और ये मामला बड़ा सीरियस था। तो मैंने सोचा, अब देखिए मेरी एक्सप्लेनेशन सुनिएगा बड़े ध्यान से। फोटोग्राफर, he explores, he tries to understand, perceive and receive, and then reflect it back through images, है ना? ये process to perceive, receive and reflect, और मैं reflect करता हूँ through my image, ठीक है ना? तो मैंने सोचा ये बीवी मेरी आज मेरी लंका ढा रही है तो मुझे तो कुछ बात समझनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं बताता हूँ क्यों करते हैं मुझसे इतना प्रेम। मैंने कहा जब मैं, मान लो जब मैं हिज होलीनेस के सामने हूँ, हिज होलीनेस इज ऑल प्योरिटी, मी एज अ फोटोग्राफर आई हैव लर्न टू रिसीव इट एंड रिफ्लेक्ट इट। सो व्हेन आई एम रिफ्लेक्टिंग हिज प्योरिटी, ही थिंक्स आई एम प्योर। क्यों लॉजिकल लगता है कि नहीं? He thinks I am a pure soul and I get that love. इतना ही सही कि मुझ में रिफ्लेक्ट करने की का एक सादगी तो आई है।
तो फोटोग्राफी मेरा धर्म है, मेरा प्रोफेशन नहीं। और तीसरा चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट धर्म है, जो मैं पहले ला के रखूँगा अब, अगर हम सब का प्रोफेशन, हमारी सबकी एक्सप्लोरेशंस इतनी डेडिकेटेड कमिटमेंट से हों कि एक कांस्टेबल भी अपनी जॉब को धर्म माने, एक ब्यूरोक्रेट माने, एक बिजनेसमैन भी उसको धर्म माने, एक पॉलिटिशियन और एक मिनिस्टर भी उसको धर्म माने, सच्चा धर्म, नाम का नहीं, नाम का नहीं, तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत होगी, सब धर्मी होंगे। और धर्म किसका? मेरा धर्म मेरे लिए नहीं है, मेरा धर्म उन वाइब्रेशंस, उन एनर्जीज, उन एक्सप्रेशन से पैदा हुआ है जो इंसान और इंसानियत की स्पिरिट है। तो अगर हम सबका धर्म हमारा प्रोफेशन ही हो जाए तो ये देश का कल्याण हो सकता है। अभी तो सॉरी, $140 या 150 करोड़ जितने भी हम हैं, चाइना से अब हम कम नहीं हैं। इसमें तो हमने दुनिया का मुकाबला किया, नंबर 1 हुए। अगर हम हमारे धर्म में जिए तो दुनिया, देखिए वो भी ज़माना था जब हिंदुस्तान में लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए आते थे। आज इतनी भारी पॉपुलेशन और मिडिल क्लास राइजिंग सो हाई, देश में बहुत पैसा हो गया लोगों के पास। लेकिन एक बात बता दूं, आज भी गरीब वहीं का वहीं है। अगर पहले वो 7,000 रुपया महीना कमाता था और आज 15,000 या 20,000 कमा रहा है, उसके हिसाब से इंडेक्स जो है इतना ऊंचा गया है। मेरा फार्म हाउस है यहाँ से 20 किलोमीटर पे, मेरे पास 4 माली हैं, हम मिल के काम करते हैं। जब मैं शाम को आ रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर डेली वर्कर्स जो हैं उनको दिन का 300, 400, 500 जो भी मिला है, वो जाते हैं शाम को वहाँ पे चावल, आलू और नमक वगैरह लेके रोज़ वापस आ रहे होते हैं। शाम का खाना बनाने के लिए वो वहीं के वहीं हैं। हिंदुस्तान इतनी बड़ी आज कंज्यूमर सोसाइटी है दुनिया में कि चाइना को भी हमने सरपास कर दिया है। और यही कारण है कि आज जब मोदी जी अमेरिका जाएं या फ्रांस जाएं तो उनको इतना वेलकम मिलता है, क्योंकि ह्यूज मार्केट इज़ वेटिंग। कितने बिलियन डॉलर्स का ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, सब कुछ हो गया, जो आज के युग में ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई एम नॉट वन ऑफ दोज सिनिकल गाइज। लेकिन जब मैं वो राशन खरीदने रोज़ जाता है, वो आज भी होता है, तब बड़ी तकलीफ़ है। तो जो बापू की विजन थी कि गांव से उठे हम, उसकी कमी रह गई। तो जब मैं इंडिया टुडे में था तो इंडिया टुडे हैड बिकम द मोस्ट पावरफुल मैगजीन। वैसे मैं पिक्चर एडिटर था, पर मेरी पोजीशन इंडिया टुडे के मास्ट हेड में एडिटर इन चीफ के बाद रघु राय पिक्चर एडिटर आती थी, फिर फीचर एडिटर्स, एग्जीक्यूटिव एडिटर्स आते थे। तो मैंने ये सीखा कि हमारे एडिटर्स जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, पर आउटडेटेड हुए पड़े हैं। कि एयर कंडीशन रूम्स में बड़े घरों में रहते हैं। फिर ये मैं इंडिया टुडे की बात नहीं, सभी, बल्कि इंडिया टुडे तो कंपैरेटिवली यंगर पीपल, दे वर यंगर पीपल, अरुणपुरी एंड ऑल दिस गाइज, दे वर यंगर पीपल। जो सीनियर एडिटर्स, उनकी एजुकेशन दूसरे न्यूज़पेपर्स और बुक से आती है। जो धरती से नहीं उपजता वो लाल नहीं है।
जहाँ धरती की खुशबू नहीं आती, तो मैं अपने एडिटर्स को कहता था कि आप एसी कमरों में बैठ के एडिटोरियल पॉलिसी डिसाइड करते हैं, यू हैव टू कम विद अस। कि मान लो मैं इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करता, पर इन वन गिवन सिचुएशन, और मोदी मुझे नहीं पसंद है या मुझे बहुत पसंद है, आई एम नोबडी टू डिक्टेट दैट कि मुझे क्या पसंद है। आज जब इंदिरा गांधी इस सोशल सिचुएशन में आई है, हाउ शी इज रिलेटिंग to the situation, to the people, what are the vibrations, what are the responses, is the truth of the situation. What Modi is saying on television is not the truth. When he relates to common man in daily life, that is the situation. और हमारे ज़माने में जर्नलिज्म में कोई भी मिनिस्टर्स से दोस्तियां करे और उनके वहाँ जाएं और आएं, इसको घोर पाप समझा जाता था। कि अगर आप पर्सनल दोस्तियां बना लेंगे, वो जैसे होता है ना कि गधा अगर घास को पूजने लगे तो खाएगा क्या, कि अगर आप पर्सनल दोस्तियां बनाएंगे, यू विल लूज ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव। सच ढूंढना, बाबा साहब अम्बेडकर भी इतनी चोटें, इतने दुख सह के और सच ढूंढते, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लिख के समझने गए कि हम कौन है, मैं कौन हूँ, देश क्या है। और उन्होंने संविधान जो फाइनल दिया हमें, कोई तुम्हें संविधान दे दे, कॉन्स्टिट्यूशन दे दे, हे भगवान, मैं तो एक परिवार में नहीं दे सकता हूँ। तो देखिए, वो दोज वर मैग्निफिसेंट मैन जो हमें इतना कुछ दे के गए हैं। लेकिन क्यों वो ऐसा कर सके? क्योंकि वो ढूंढने निकले थे फिर से, ऑल ओवर अगेन। देखिए, आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी, सब इतनी किताबें हैं, जय कृष्णा मूर्ति हों या आज इतने और बोलने वाले हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े फिलोसफर्स, पर हर युग में नए कॉन्टेक्स्ट में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, यू हैव टू सर्च फॉर इट ऑल ओवर अगेन। और लिटरेचर और फिलॉसफीज पढ़ के नहीं तुम्हारे होते, जी के तुम्हारे होते हैं। और धर्म कर्म की बात जो है, एक ही धर्म है जो दिल से। मैं आपको बताऊं कि पैंडेमिक के टाइम पे वी वर स्टक, तो 2-3 महीने तो हम भी फंस गए थे। तो मैंने सोचा कि तू धर्म के बारे में तो जानता नहीं है, आपने कुछ तो सीख ले, क्योंकि धर्म का शोर मचा हुआ है देश में। तो मैंने रामायण देख ली, मैंने महाभारत देख ली, मैंने महादेव को सुन लिया ट्वाइस ओवर, क्योंकि कुछ एक अटरेंसेस जो थी वो अनदर वर्ल्ड, अनदर विजन थी, जो शायद सिर्फ आसमानों में सितारों से निकलती होंगी। एंड दे टॉक्ड अबाउट ह्यूमैनिटी, नोबडी टॉक्ड अबाउट हिंदुत्व और हिंदुइज्म। बल्कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा था इन्होंने एक साल पहले। तो उन्होंने कहा, रघुराज जी आप भी हमें कुछ बताएंगे, कुछ नया बताइए। तो मैंने कहा, ऐसा है, हमारे वासुदेव कृष्ण महाभारत में कहते हैं कि जो धर्म असूलों में बंधा है, राइट्स और रिचुअल्स में बंधा है, वो बंधा हुआ धर्म है, उसमें करुणा नहीं है, कंपैशन नहीं है। जो धर्म दिल से उपजता है, दिल से, वो है असली धर्म। क्योंकि आपका दिल कभी किसी दूसरे दिल को दुखाएगा नहीं। सिर्फ आपके दिमाग में जो इस कंप्यूटर में इतना कचरा भर लिया है हमने ओवर द ईयर्स, वो जो है, देखिए ऐसा है कि होली में किसी ने आप पे लाल रंग लगाया, किसी ने पीला लगाया, किसी ने हरा लगाया, इसी तरह वो रंग लगते गए। बाय द एंड ऑफ द
2 hours or 3 hours, it's a brownish black rubbish. जितनी मर्जी आप लिटरेचर फिलोसफीज पढ़ लें, दे ऑल बिकम गार्बेज इनसाइड, अगर उसको आप जीना नहीं सीखे. And then you make a hodgepodge of everything and you begin to throw it at people. इंसान का धर्म एक्सप्लोरेशन है, ढूंढना है, प्यास है और प्रेम है. और जितना प्रेम आप में है, जितनी टेंडरनेस आप में है, उतने स्प्राउट्स उगते हैं. हम स्मार्ट बन जाते हैं, हमारी भाषा बदल जाती है, हमारे तरो तरीके चलने के स्टाइल सारे बदल जाते हैं, क्योंकि अब तो हम स्मार्ट हैं. हमें तो बहुत लोग जानते हैं. अरे मेरे भगवान, रास्ते में भगवान आ रहे थे, आप इतने स्मार्ट थे कि वो खड़े आप पे स्माइल कर रहे थे, आप तो स्मार्टनेस में आगे बढ़ गए. मैं कैमरा हर जगह साथ लेके जाता हूँ तो मुझे लोग हंसते हैं कि क्या यार हर जगह कैमरा. मैंने कहा यार ग्रेट मोमेंट, और भगवान का कोई भरोसा नहीं कहाँ दर्शन दे जाए. तो जब आप जिंदगी के लिए तैयार हैं. अब दूसरी बात जो उससे भी आगे की मैं आपसे शेयर, टाइम है, उससे भी आगे की जो बात है वो ये है. देखिए मैं बहुत संगीत सुनता हूँ, मैंने वेस्टर्न क्लासिकल भी सुना एक अरसा तक, लेकिन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो मेरी सोल को नरिश करता है. और मैंने अपने जो बड़े बड़े संगीतकार थे, चाहे विलायत खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब, किशोरी जी, पंडित रविशंकर, भीमसेन जोशी, बड़ा आनंद पाया है और उन पे बुक किया मैंने. और जब मैं परफॉर्मेंस में होता था तो मैं ये कह सकता हूँ, इट माइट साउंड एरोगेंट, कि वो मेरे लिए परफॉर्म करते हैं. क्यों? क्योंकि उनके नुआंसेस, उनकी डिस्कवरीज पे मेरी सोल कूद के आगे आती है उनके सामने, तो वो मेरी आंखों में देख के बजाते और गाते हैं, क्योंकि उनको रिस्पॉन्स उसी नुआंस का मिलता है. उसी के अली अकबर खान साहब की आदत थी सर नीचे करके और राग बजाए जा रहे हैं, और बजाते बजाते आँख खोलते हैं, क्योंकि उसने कहता मैंने नहीं, वो आके बजाए तो बात बने. तो जब वो बजाएगा तो वो अद्भुत ही होगा ना. ये बड़ी बात है. आर्टिस्ट को देख लीजिए, हुसैन बाबा भी यही थे कि यार मैंने रंग तो लगा दिया पर वो नहीं आ रहा, यार आगे ले जाए. ये हमारे यहाँ किशोरी जी कहती हैं क्लासिकल म्यूज़िक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए है. विलायत खान साहब भी बिल्कुल यही बोलते थे. तो वो लोग जो थे, और ये सब आज भी कहते हैं कि म्यूज़िक जो है तो किसी धर्म का नहीं है, वो उस डिवाइन का है. अब वो डिवाइन जो है, आप नाम रखने हैं तो आपकी मर्जी है, पर अगर आप उसको फ्री छोड़ें तो आपको और भी दूर तक वो ले जाएगा. क्योंकि जब हम नाम रखते हैं या असूल में बांधते हैं तो लिमिटेड होने लगता है. तो मैं दिन रात संगीत सुनता हूँ, और संगीत से मुझे बहुत प्रेम है, और आधी आधी रात को बैठ के सुनता हूँ. एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ. जब मैं बुक कर रहा था तो मैंने अली अकबर खान साहब, जो बड़े सीरियस कंपैरेटिवली म्यूजिशियन, मैंने सोचा यार इनके अंदर मैं कैसे घुसूँ, क्योंकि वो स्माइल ही नहीं करते, ज़्यादा बात ही नहीं करते. एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द म्यूजिशियंस ऑफ दैट टाइम, इवन ग्रेटर देन पंडित रविशंकर. तो मैंने कहा खान साहब ये मैं कर रहा हूँ. तो कहने लगे फिर आप, मैं मैयर जा रहा हूँ, आप वहाँ आओ मेरे साथ. मैं उनके साथ गया. फिर मुझे कहते हैं जब हमारी थोड़ी गुफ्तगू होने लगी, बातचीत हुई, तो कहने लगे फिर तो आपको मेरे अमेरिका में भी, लॉस एंजलिस मेरे स्कूल में आना पड़ेगा.
मैंने कहा पहुंच जाऊंगा। तो मैं पहुंच गया अमेरिका में। मैंने फ़ोन किया खान साहब को कि मैंने कहा खान साहब मैं हाज़िर हो गया हूँ। तो उससे पहले मैंने जाकिर को फ़ोन किया, क्योंकि जाकिर भी उन्हीं के करीब रहते हैं। तो जाकिर फ्लैम्बॉयंट एज ही इज़, उसने कहा हाँ आप इस होटल में चले जाओ, वो पास है। मैं उस होटल में चला गया। दूसरे दिन मैंने खान साहब ने कहा सुबह आ जाओ आप 10-1 बजे, हम अपने वहाँ स्कूल में जो हमारा म्यूज़िक का है वहाँ से शुरू करेंगे, फिर घर चलेंगे। तो मैं वहाँ पहुँच गया कैमरा और कैमरा बैग लेके। पहली चीज़ उन्होंने पूछी, अरे आपका सामान कहाँ है? मैंने कहा खान साहब वो ये होटल में मैंने चेक इन किया। कहते हो कोई नहीं, आज तो ठीक है, कल आप सामान के साथ आएंगे। ये आपका कमरा है, ये आपका टेलीफोन है, और ये आपकी शिवाज रीगल है, सब तैयार। तो उनके साथ मैंने दिन बिताया। फिर कहते हैं शाम को घर चलेंगे, खाना बनाऊंगा आपके लिए। मैंने कहा चलिए। अब वो जो बात ही नहीं ज़्यादा करते, वो खाना बना के खिलाने को तैयार है। मैं तो गदगद हो चुका था। तो उनके घर गए तो वही शिवाज का एक गिलास उनका तैयार, एक हमारा तैयार, चीयर्स होगी। कहने लगे आप क्या सुनेंगे? तो मैंने कहा खान साहब आप तो इतने सालों से यहाँ पे इतने कॉन्सर्ट्स देते हैं, जो आप सोचते हैं आपके बड़े इम्पोर्टेंट कॉन्सर्ट्स हैं, राग हैं, आप वहाँ से शुरू करें। तो उन्होंने राग चंद्रनंदन शुरू किया। तो मेरी तरफ देख के कहते ये तो राग तो आप स्वर तो समझते होंगे। मैंने कहा मारे गए, अब मैं स्वर और राग कैसे समझूं? तो मैंने बड़ी शर्म से कहा, मैंने कहा हाँ साहब हाँ कुछ एक राग जैसे भैरवी है, जैसे मालकौंस है, बागेश्वरी है, थोड़ा पहचान लेता हूँ। तो खान साहब के चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट थी कि मेरे पे बुक करने आया और ना राग ना स्वर, कि ये कौन आदमी है। तो जब मैंने उनकी, अब ये सारी कम्युनिकेशन एक्सप्रेशंस के थ्रू हो रही है, तो जब मैंने उनके डिसअपॉइंटमेंट देखी तो मुझे बुरा लगा। तो मैंने कहा खान साहब एक बात है। कहते क्या? मैंने कहा मैं रसिक अच्छा हूँ। नाउ दैट इज सेइंग क्वाइट अ लॉट अबाउट योर सेल्फ कि मैं जी अच्छा रसिक हूँ। तो उनकी आंखें ऐसे उठी, मतलब कैसे? ये डिडंट आस्क कैसे, बट आई कुड सी इट कि उनकी आंखें पूछ रही हैं कैसे बेटे। तो मैंने कहा खान साहब 60s में जब मेरी पहली नौकरी लगी तो मैंने एक रिकॉर्ड प्लेयर ख़रीदा। अब देखिए ये बड़ी ज़रूरी बात होती है, ये मंडेन डिटेल्स जो है ना उस सच को एक बड़ा सहारा देती हैं। इसीलिए सत्यजीत रे की मूवीज़ आर मोर इम्पोर्टेंट देन दीज गाइज, बिकॉज वो ज़िंदगी का ऑर्डिनरी कॉमन थ्रेड से उठा के बात करते हैं बॉलीवुड वाले। सत्यजीत रे धरती से जुड़ी डिटेल से शुरू करता था और फिर हाई पॉइंट्स आते थे। तो मैंने कहा, तब मैंने रिकॉर्ड प्लेयर ख़रीदा तो वहाँ पे उनके पास एक एलपी था, राग देश मल्हार बाय अली अकबर खान साहब। मैंने कहा ना मैं देश मल्हार को जानता था ना मैं अली अकबर खान साहब को जानता था। तो मैं वो ख़रीद के ले आया, तो मैंने सुना, और फिर जो संगीत मुझे बहुत पसंद आता था मैं उसको दिन रात बार बार सुनता था। और जब सब सो जाते थे तो अकेले में रातों में बैठ के सुनता था। तो मैंने कहा खान साहब आपका देश मल्हार सुनते सुनते मेरे दिल से निकला, खान साहब आप पूर्ण सत्य कह रहे हैं कि वो राग की रेंडरिंग जो थी was in its entirety he had captured the spirit of that राग। तो मैंने कहा खान साहब आप पूर्ण सत्य कह रहे हैं। तो खान साहब जो इतना सीरियस चेहरा था, उनकी आधी स्माइल। मैंने कहा हे भगवान बच गए। तो फिर उन्होंने बड़ा ही बढ़िया चिकन खिलाया, खूब बढ़िया खाना खिलाया। तो बाहर निकले तो कहने लगे, नहीं बाहर निकले तो मैंने देखा रात के टाइम में थोड़ा कंस्ट्रक्शन की स्कैफोल्डिंग लगी थी। मैंने कहा हाँ साहब ये क्या कर रहे हैं? कहते ऊपर एक साउंड प्रूफ कमरा बनाऊंगा।
जहाँ सिर्फ मैं अकेले में बैठ के बजाया करूँगा, और उन चांदनी रातों में जब मैं उससे कनेक्ट करूँगा, फिर मेरी तरफ मुड़ते हैं, मेरे कंधे पे हाथ रखते हैं और मुझे कहते हैं, अगर सच्चा सुर लग गया तो तुम्हें भी सुनाऊंगा। तो मैं ऐसी जिंदगी जिया, क्योंकि उन क्रिएटिव स्पिरिट्स का हक बनता है कि बुद्धूराम जी आप कैसे चले आए, पर बुद्धूराम हम हैं, लेकिन दिल के प्रेमी और हम ढूंढने वालों में से एक्सप्लोरर्स हैं। सभी के पास सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, और उसके लिए हमें शर्माने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मदर के साथ, हिज होलीनेस के साथ, इन संगीतकारों के साथ बहुत मैंने सीखा और बहुत आनंद पाया है। तो काफ़ी आज के लिए नहीं, मेरी एक बात रह गई थी, जो मैं आगे का स्टेप हम बता रहा हूँ, जो आजकल में होता है। क्योंकि तब मैं एडिटोरियल नीड्स के लिए भी काम करता था, फॉरेन मैगजीन्स, इंडिया मैगजीन, ये वो एडिटोरियल नीड्स के बाद स्टिल आई वेट फॉर एन एक्सप्लोरेटरी इंडिविजुअल मोमेंट दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो जब मैं संगीत सुनने लगा, दिन रात सुनता रहा और मेरे अंदर सुर बजने लगे, तो जब मैं सिचुएशन में अब जाता हूँ, तो देर इज़ अ बुद्धिस्ट फिलॉसफी, वेरी सिंपल लाइन्स, बीइंग हेयर एंड नाउ, द मोस्ट ऑर्डिनरी and the most realistic and magical vision. Being here is here, now is the time. And जी, तो photographer, agar he can't be here and now, he will always produce pictures from his head, कि ये कर लूँ, वो कर लूँ. But if you are here and now, then you're connected with every inch of space, every vibration that you're getting and responding to it. तो जब आप इतने connected हैं, then you become a part of the whole. If you are so connected, 100% mind, body and spirit, then you become part of the whole. Then the whole begins to perform for you. The rhythm, the music, the beat I have beating my heart begins to beat in this space. कहते हैं ना कि क्या मोमेंट पकड़ा यार, यू कैन मिस अ हार्ट बीट. व्हेन यू मिस अ हार्ट बीट, द सिचुएशंस हैव एक्वायर्ड द बीट एंड इट बिगिंस टू लिव फॉर इटसेल्फ. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you for sharing your wisdom with us. Snigdha, 1 minute. Raghuji had requested that he would like to take some questions from the audience. So I think Only anyone. if you have any. There's a question. Thank you. That was a wonderful talk, and I just wanted to know कि आजकल आपका मन कहाँ है, कहाँ लगता है, क्या करते हैं? मेरा मन तो होता ही नहीं है, मेरा दिल ही दिल है. एक दफ़े मेरी टांग में चोट लग गई थी, मैं लंगड़ा के चल रहा था, तो मेरे दोस्त ने कहा क्या है यार तेरी टांग को. मैंने कहा मेरी टांग में दर्द जिगर है. देखो, इंसान की खूबसूरती यही है कि वो सारे का सारा दिल भी बन सकता है, वो सारे का सारा दिमाग और जालिम दिमाग भी बन सकता है. आप चूज़ कर लीजिए क्या बनना है आपको. अरे मेरी बच्चियाँ अभी भी ये मानती हैं कि हमारा पापा कितना इनोसेंट और सीधा है. मैंने सारी दुनिया देख ली. मेरी बच्ची सड़क पार करनी तो मेरा पापा कम विद मी, शी विल होल्ड माई हैंड. अरे मेरे बच्चे तो क्यों? क्योंकि मैं उनको लाडों से लडाता हूँ, उनको नेचर के साथ खिलाता हूँ. मतलब
कोई ऐसी सिचुएशन नहीं जहाँ पे वो कुछ करना चाहे मैं उनको रोकता हूँ, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें तो हुक्म मिलता था कि ये नहीं, आप ये करेंगे। तो मेरा दिमाग नहीं होता है, क्योंकि दिमाग में तो भूसा भरा है। Highest intellectual mind is okay when he begins to talk, but in creativity, your mind is heavyweight champion sitting and controlling you and not letting you experience the vibrations, the freshness, and the new challenges it's sending you. क्योंकि तुम तो दिमाग से फैसला कर चुके हो, मैं जानकार हूँ, मैं जानता हूँ। अच्छा, मेरी बेटी भी मुझे सड़क पार कराती, पापा बड़े सीधे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, आई गेट सो मच लव। तो दिल से जीना जो है अति उत्तम है। हाँ जी, आप पूछिए। मैम, मेरा रवि जी और आपसे दोनों से प्रश्न है। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ी है और टेक्नोलॉजी से थोड़ा पास ला के करिए ना। टेक्नोलॉजी के हिसाब से समय ऐसे ऊंचे बोलिए। ऐसे बोल तो आजकल ना, पहले जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे या मीडिया के लोग होते थे, तो जितना जर्नलिस्ट होते थे उससे ज़्यादा फोटो जर्नलिस्ट होते थे। आजकल क्या हो गई कि ये फ़ोन हो गया, एक ही लोग फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि फोटोग्राफी के क्षेत्र में कुछ क्षरण हुए हैं? और मैडम से जानना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी इसके लिए कुछ कर रही है, क्या कोर्सेज चला रही हैं और आगे क्या प्लानिंग है? थैंक यू। मैंने तो आपसे सवाल पूछा है, आप जवाब पहले आप देंगे तो मैं बाद इससे में नहीं, सवाल उनका मान हिंदी लूंगी। का शब्द मुझे क्या, फोटोग्राफी में का क्षरण हो रहा है। फोटोग्राफी जिस स्तर पर थी वो आज उसे नीचे बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल आने के बाद अब देखिए, आपने पहली बात तो है कि आपने गलत बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देश में अब होती कोई नहीं है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हो भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हो भी किसी की, तो इट्स नॉट द वर्ड्स दैट लीडर और person is speaking, it's also the expressions on his face. Is he truly connected with that philosophy that he's throwing at you? And the vibrations of it, then it makes a story. नहीं तो वो तो सर्कुलर है सरकार का, वैसे ही आ जाएगा आपके घर में, इंटरनेट पे सब मिलता है। तो देखिए, ज़माने बदले, टेक्नोलॉजीज़ बदली, बहुत कुछ हल्का फुल्का हो गया है, तो ये भी हो रहा है। लेकिन जो लोग सीरियसनेस में जीते हैं, जिनका ये धर्म है, वो इसको बिगड़ने नहीं देते, अपनी दुनिया को, अंदर की दुनिया को। अब आपकी बात। अगर आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास एक स्कूल है, स्कूल ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, और स्कूल ऑफ सोशल डिज़ाइन, दो स्कूल्स हैं जहाँ क्रिएटिव वर्क होता है। पर्टिकुलरली फ़ोटोग्राफी को लेकर के अगर आप बात कर रहे हैं, तो फ़ोटोग्राफी को लेकर जो डीन यहाँ बैठी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि कुछ काम कीजिए। और आज के इस भाषण के बाद आपकी तरफ से एक प्रपोज़ल फटाफट आना चाहिए। वेरी गुड। तो डीन यहीं मौजूद हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी हम विजुअल आर्ट में भी काम करते हैं, वो भी बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, और बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं हमारे स्कूल से। और रघु जी ने आज बोला है, तो मेरा लेक्चर बिल्कुल मीनिंगलेस होने जा रहा है। फिर भी मैं आई थिंक वहीं आती हूँ और बात करती हूँ। अच्छा, प्लीज़। Sir, first, thank you for your very inspiring and very energizing lecture. Sir, मुझे आपकी बात में दो बातें बहुत अच्छी लगी। एक बात कि आप किताब नहीं पढ़ते, शायद दूसरी हम दूसरी आपने जो खोज की बात की, रोचक खोजने की, मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ था कि मान लीजिए फोटोग्राफी कुछ 100 साल पहले शुरू हुई थी, सोशल साइंसेस कुछ 100 साल पहले शुरू हुए थे, तब हम खाली कैनवस पे खोजा करते। आज के दिनों में जब खोजने निकलते हैं तो पिछले कुछ सालों की
जितनी जानकारी है, जितना ज्ञान है, वो भी हमारे ऊपर हावी होता है। तो ये पीछे के ज्ञान का इस्तेमाल करना और आगे की अपनी खोज को करने के बीच बैलेंस हम कैसे हैं? जी, ऐसा है कि मैं इतना भी अनपढ़ नहीं कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी। कुछ एक किताबें मेरे दिल को छू चुकी हैं और उनमें से एस राधा कृष्णन का पुराण जो हमारे हैं, क्या विजन है उन्होंने। मैं तो सदगुरु हो, जय कृष्णा मूर्ति हो, कोई भी फिलोसफर हो, ओशो हो, क्या हमारे वेद पुराण थे, कितनी दूर के जो क्या बोलते हैं उनको, आउटर स्पेस से वो क्या क्या उन्होंने रिसीव किया और ग्रंथों में डाला है कि कसम से। वो मेरा दोस्त एक है हिम्मत शाह स्कल्प्टर, वो 90 साल का हो गया है, स्टिल वर्किंग। तो उसका बर्थडे था थोड़े दिन पहले। कहता यार रघु क्या बताऊं। मैंने कहा क्या हो गया? कहता यार जब तक बात समझ में आती है आदमी बुढ़ा हो गया होता है। एक लाइफ टाइम नहीं, कई लाइफ टाइम लगते हैं ढूंढने और पाने में। 1 मिनट। तो ये जो बात है हमारे ग्रंथों की इतनी अद्भुत है कि मैंने सोचा भी नहीं था। वो एक हमारी दोस्त है, उसने ऐसे ही मुझे ज़बरदस्ती में जा रहा था कलकत्ते में, मैं बाय बाय कह के, तो उसने कहा ये आपके लिए किताब आई पड़ी है। तो उसने मुझे थमा दिया एस राधा कृष्णन का। तो मैं प्लेन में बैठा रिलक्टेंटली, मैंने कहा पढ़ूँ तो सही। अरे बाप रे, वो कौन लोग थे और क्या क्या लिख गए और कह गए। हमें पता नहीं कितनी सेंचुरीज लगेंगी फिर से उस लेवल पे भारत देश को ले जाने के लिए, क्योंकि अभी तो बैकवर्ड जर्नी चल रही है। तो वो जर्नी के लिए तो बहुत कुछ टाइम लगेगा, और वो है ब्रह्मांड में, है हमारे ब्रह्मांड में, जिसको हम जी सकते हैं। आपका क्या सवाल था दूसरा? पहले जो काम हो चुका है, हम जो अपना हाँ देखिए, ये nothing comes from nowhere. Everything has its origin also and connections. Civilizational continuity is very important. Our history, good or bad, is very important to learn many lessons. So civilizational continuity is very important. Creative process in any medium is very important. You like it or not, whether you call it a liability or a responsibility, you got to know what all has been done in this field of photography, painting, music, sculpture, whatever. पर जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी, सबको जानो, सबको समझो, ये कंप्यूटर दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर हमें भगवान ने लगा के दिया है, और इस कंप्यूटर में इतनी कैपेसिटी है कि जहाँ मर्जी ले जाइए इसको, जितना मर्जी बढ़ा दीजिए, लेकिन ये नामुराद कंप्यूटर को फॉर्मेट नहीं कर सकते। और क्रिएटिविटी में ये बाधा है, क्योंकि व्हेन आई से बीइंग हियर एंड नाउ, here and now, in now, this should not exist, this should not come in your way, the past. आप आज की वाइब्रेशंस, आज की सेंसिटिविटी, आज की अलाइनमेंट्स को ढूंढ के काम करना है। दोनों ज़रूरी हैं। मुक्ति पर वही है कि उससे मुक्त रह के क्रिएटिविटी होती है। फिलोसफीज आर बॉर्न लेटर ऑन। फर्स्ट इट्स अ मोमेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन, एंड देन यू कम टू से ओह दिस इज व्हाट इट वाज। Thank you, sir. लास्ट क्वेश्चन। छोटा सवाल है कि आपका कंजर्वेशन के साथ हियर और नाउ का कितना कनेक्शन है? पहले कभी कभी हो जाता था, नया नया था, पर तब मेरी जिम्मेवारी ये थी कि मुझे बहुत अच्छा फोटोग्राफर बनना है। तो वो बोझ जो होता है इज़ अ लाइबिलिटी, कि मुझे अच्छा काम करना है।
तो बीच बीच में जब मैं बड़े इंस्टिंक्टिवली काम कर लेता था तो दैट वाज हियर एंड नाउ, पर अब मैं मुक्ति के रास्ते पर हूँ। इट्स बिकम, पहले मैं कहता था, मुझे जब मैं इवन फोटो जर्नलिस्टिक असाइनमेंट्स भी करता था तो मैं कहता था यार वो उसमें दिमाग को बांध के यहाँ लाना पड़ता है, ये हो रहा है। उसमें भी मैं कोशिश करता था कि वो इंस्टिंक्टिव मोमेंट्स व्हेन अ ट्रूथ गेट्स कैप्चर्ड, और उसके लिए मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती थी। अब तो मैंने आपको बताया मैं आनंदित हूँ। Thank you, everyone. Thank you, sir, for sharing your pool of wisdom and knowledge with us. The values of inward gazing, the values of letting loose of our boundaries. You've made us realize the differences between seeing, watching, believing, perception, and everything. Thank you very much. So, as we soak in the values and messages of Sri Raghu Rai's conversation, it is my earnest pleasure to invite our Honorable Vice Chancellor, ma'am, for her address. Ma'am, we are looking forward to your words. Good afternoon, everyone. Raghuji, special good afternoon to you. Padma Shri Raghu Rai ji, Professor Babu P. Ramesh, who is the Dean Research and Consultancy, now Research and Development we call him as. Dr. Parag Vaknis, who is the chair of the Shodhotsav program, and his team members who are here, I'm sure. And team members, I think Yogesh Nehi, you are also part of the team. Dheeraj Knight was also part of the team. Then the registrar of the university, Dr. Nitin Malik. Congratulations to all of you. And also, I would like to thank Babu P. Ramesh for having invited Raghuji here for the occasion. Raghuji ने एक बढ़िया काम किया है कि आप सबको सोते से जगाया है और ज़िंदगी के दर्शन कराए हैं, परंतु मेरा काम बड़ा मुश्किल कर दिया है। मेरा एज वाइस चांसलर जो रोल है वो थोड़ा अलग है, तो बहुत बहुत बधाई के साथ शोधोत्सव जब हमने 3 साल पहले शुरू किया था तो इसी सोच के साथ और इसी समझ के साथ कि रिसर्च जो है वो 1 या 2 दिन का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, ये कम से कम 1 महीने का प्रोग्राम हो तो उसमें कुछ निकल के आता है। फैकल्टी पार्टिसिपेट करें, रिसर्च स्कॉलर्स पार्टिसिपेट करें, बाहर के लोग आएँ और पार्टिसिपेट करें ताकि चर्निंग और आइडियाज़ की चर्निंग खूब सारी हो और आप एक डायरेक्शन सेट कर पाएँ। ओम अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतगमय, ओम शांति शांति शांति। जब भी किसी पब्लिक एड्रेस पे एजुकेशन की बात होती है, रिसर्च की बात होती है, या हम डायरेक्शन सेट करने की बात करते हैं एजुकेशन में, इससे ज़्यादा रेलेवेंट कोई श्लोक मुझे नहीं लगता है। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलिए। और अंत में हम क्या पाएंगे? दैट मे वी ऑल लिव इन पीस इज़ द अल्टीमेट ऑफ दिस श्लोका। क्या बात है। तो मैं प्रभु से भी प्रार्थना करती हूँ और आप सबसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम एजुकेशन के में अपने आप को पूरी तरह से झोंक देते हैं। रघुराय जी ने बार बार एक ही बात कही कि मैंने दर्शन ज़िंदगी के दर्शन से पाए, एजुकेशन भी ज़िंदगी के दर्शन से ही आप पा सकते हैं। एक ज़माना था जब हम कहते थे जय जवान जय किसान, अब हम कहते हैं जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ये हमारा देश का नारा है। इस नारे के पीछे बहुत बहुत गहरी सोच है और एक इकोसिस्टम और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात भी है। इंटरेस्टिंगली जो सोशल साइंसेज जो हैं बड़े ट्रेडिशनली हैव बीन चैलेंज्ड फॉर द रीज़न दैट सोशल साइंटिस्ट हैव ऑलवेज हेल्प societies to imagine
alternative futures inspired by grounded and rooted realities. The application of technologies and human response towards them is the newest trend in social sciences, from economic sustainability to the studies of health and well-being, from ensuring dignified life and status to the underprivileged, and taking the vast to the understanding of neurosciences and cultural adaptation. Social sciences have a wide area of issues to cover as well as contribute. Social sciences have attested to the strongest potential to contribute and critique to policy development, strategy making, public administration, governance, cultural mapping, the user and design research, etc. We all know with the advent of AI, deep learning, machine learning, social sciences get challenged all the more. As has been rightly said, that social sciences is the alchemy that transforms data into wisdom, navigate theory and realities, contextualizing narratives helping us to uncover the realities of everyday life and interconnectedness of human communities. The entire realm of social sciences, through their innovative lenses and pedagogic deliveries, have always fine-tuned the symphony of human diversity and complexity of human interactions. During the pandemic time, we all know that how we imagine the researchers in social sciences connecting it to technology very, very, very easily. But at the same time, we find that the challenges are very many, and relevant issues of social sciences need to be redefined. जब भी साइंस और टेक्नोलॉजी का मेरा, क्योंकि आई हैव वर्कड मोस्टली इन यूनिवर्सिटीज़ ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, कमिंग फ्रॉम मैनेजमेंट बैकग्राउंड, I would always tell them that why Indian researchers in science, technology, and engineering are not as per the international standards. The reason has been that much of the Indian work has been of extension and upscaling. Extension work मतलब जो काम already हो चुका है उस पर और थोड़ा आगे बढ़ाते चले जाएं, और अपस्केलिंग का मतलब है कि ऑलरेडी जो स्केल अप हो गया है काम में उस पर थोड़ा सा और अपस्केलिंग का काम आप कर देते हैं. तो रिज़ल्ट ये हुआ है कि हमारे भारत में बहुत सारा काम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में भी ओरिजिनल नहीं है, क्रिएटिव नहीं है. सोशल साइंसेज में ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो हम थ्योरीज़ पढ़ा रहे हैं, जो हम मॉडल सिखा रहे हैं, जो फ़िलॉसफी सिखा रहे हैं. आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि रघु जी ने जब इंडियन दर्शन के दर्शन कराए और डिवाइन पावर के साथ एक बड़ी पावरफुल कनेक्ट उनकी जीवन का रहा, तो उस लेवल पे जब वो इस चीज़ को समझ रहे थे, और शायद पूरी उम्र लग गई उनको ये समझते हुए, और अपने दोस्त की बात बता रहे थे कि जब जीवन का मतलब समझ आता है, जीवन हाथ से सरक जाता है. तो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस में बड़ी ज़रूरी है ताकि सोशल साइंस रिसर्च बहुत रेलेवेंट हो पाए. कोई भी सोशल साइंस अंडरमाइन हो ही नहीं सकती जब तक सोसाइटीज़ हैं, जब तक लोग हैं, जब तक ये समाज चल रहा है. पर हो ये रहा है कि टेक्नोलॉजी ने फास्ट पेस पकड़ा है, उस पेस के साथ सोशल साइंटिस्ट ने पेस नहीं पकड़ पाए हैं. और ये रियलिटी चेक हमें लगाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि कहाँ हमें पेस पकड़ना है ताकि हमारी सोशल साइंसेस की रिसर्च जो हैं वो रेलेवेंट हों और होती चली जाएं. नई एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क में हम देखते हैं कि सिटीज़न प्रोफेशनल रिसर्चर प्रोग्राम है. आई होप यू ऑल नो दैट. अटल टिंकरिंग लैब के नाम से NEP में शुरू किया है, जो स्कूल के बच्चों के लिए है. और स्कूल के बच्चे जो हैं वो ना तो रिसर्चर हैं, ना प्रोफेशनल्स हैं, ना ही उन्हें रिसर्च का आइडिया है. तो वो बच्चे कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, या आम जो व्यक्ति है, आम जो सिटीज़न है, देश का निवासी है, उसको कैसे रिसर्चर बनाया जा सकता है. क्योंकि बहुत सारा काम जो हमारे विद्वानों ने लिखा वो कोई रिसर्चर नहीं थे, उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी. उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपीरियंस से, सच्चाई से, पूरी सच्चाई से किसी भी फिनोमेना को,
किसी भी सोशल मूवमेंट को, किसी भी सोसाइटल कंटेक्स्ट को पूरी सच्चाई से उसको समझा और पूरी सच्चाई से उसके बारे में डायरेक्शन दी। इसीलिए हम आज कहते हैं कि उनकी रेलेवेंस आज कितनी ज़्यादा है, चाहे वो वेद हों, चाहे वो गीता हो, चाहे वो उपनिषद्स हों, चाहे कोई भी स्क्रिप्चर्स हों दुनिया के, उनकी रेलेवेंस आज भी इसीलिए है। ओपनहाइमर का रेफरेंस कंटेक्चुअल है और रेलेवेंट भी है, आप सब ने देखा होगा। अगर आप उनकी ओरिजिनल वीडियोस देखें जहां उन्होंने बहुत सारा रेफरेंस जो है गीता के श्लोकों पे दिया है, आप ज़रूर देखिएगा। शायद इतनी समझ, सोच और गीता को हमने नहीं पढ़ा जितना ओपनहाइमर ने पढ़ा था, जितना लोगों ने इवन बाकी साइंटिस्ट ने पढ़ा। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसको एटम बॉम्ब बनाने का प्रोजेक्ट कहते हैं, उसमें एक जापानीज़ लेडी थी, मैं अब उसका नाम शायद ना रिकॉल कर पाऊँ। शी वॉज द वुमेन हु एक्चुअली contributed almost 90% to the projects testing the reliability of the project. Reliability एक बहुत important concept होता है टेस्टिंग लेवल पे जब प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं। रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंजीनियरिंग की रिसर्चेज में। तो 90% रिलायबिलिटी, 90% ऑफ द वर्क शी डिड ऑन रिलायबिलिटी ऑफ एटम बॉम्ब कि कितनी एफिकेसी के साथ, कितनी एफिशिएंसी के साथ एटम बॉम्ब डिलीवर करेगा जिसके लिए वो बनाया गया। बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी थी वो, और बहुत तप और साधना करती थी वो, और बुद्धिस्ट थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उनको इतना क्रेडिट नहीं मिला क्योंकि आदमियों की दुनिया में वी ऑल नो दैट women will always get the back seat, and those were the difficult times. She did not get the kind of attention, the kind of name and recognition, but it was her initiative on the Manhattan Project which saw the light of the day. So ये ज़रूरी नहीं है कि खाली हमारे ही शास्त्र, हमारे ही वेद, हमारे ही परंपराएं जो हैं वो सब कुछ कहती हैं। बहुत सारी परंपराएं बाहर की भी हैं, बहुत सारे बाहर के नॉलेज सिस्टम्स हैं जो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छे हैं, उन्हें भी ज़रूर पढ़ना चाहिए ओपन माइंड के साथ। रघु जी ने बार बार एक ही बात कही है, धर्म वो है जो आप अपने काम को पूरे धर्म से शिद्दत से निभाते हैं, वो सबसे बड़ा धर्म है। बट फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी है। भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएटिविटी ख़त्म होती है हमारी, या क्रिएटिविटी है ही नहीं, या हमारे रिसर्च में वो इंजेन्युइटी नहीं है, वो हमारे रिसर्च में अपनापन, ओरिजिनलिटी नहीं है। उसका सिर्फ कारण ये है हमारे पास फ़िलॉसफी ही नहीं है। हम फ़िलॉसफी पे बात ही नहीं करते हैं, बहुत घबराते हैं। ऐसा सोचते हैं कि शायद हम अपनी फ़िलॉसफी की बात करेंगे तो हम बड़े बैकवर्ड हो जाएंगे, बहुत बैकवर्ड हो जाएंगे, और समझ बूझ ही नहीं रखते हम इन सब चीज़ों की। तो इसीलिए हमारी भारतीय रिसर्च जो है वो रिकग्नाइज़ नहीं हो पाई, क्योंकि हमें अपनी फ़िलॉसफी और दर्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। सारे रिसर्चर्स जो यहाँ बैठे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी कोर्स वर्क में आप ज़रूर, डायरेक्टर बैठे हैं यहाँ, अपने कोर्स वर्क में ट्रेडिशनल इंडियन थॉट्स को ज़रूर पढ़ाएं, हमारे स्क्रिप्चर्स को ज़रूर पढ़ाएं। और बहुत सारे मैनेजमेंट डिसिप्लिन में तो हो रहा है, पर सोशल साइंसेज में अभी हम ये काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम नया कोर्स वर्क बनाएं और इन सब चीज़ों को समझें। दूसरी बात है कि सोशल साइंस में साइंस कहाँ गायब हो गई, सोशल स्टडीज़ बन के रह गई। वो वहाँ गायब होगी जहाँ मेथडोलॉजी पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेथडोलॉजी एम्पेरिकल ये ज़रूरी नहीं, मेथडोलॉजी क्वांटिफाइड डेटा हो ये भी ज़रूरी नहीं, पर मेथडोलॉजी वो ज़रूर हो जहाँ आपका बायस, आपका टेस्टिंग बायस, आपका कंसेप्चुअल बायस। सबसे पहले तो आप अगर एक टॉपिक उठाते हैं,
अगर उसी में आपने बायस क्रिएट कर दिया है तो आपके काम का कोई महत्व नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। आप जो मर्ज़ी टेस्ट लगाएं उसके ऊपर, समाज में उसकी रेलेवेंस भी नहीं है और कोई पढ़ेगा भी नहीं, कोई देखेगा भी नहीं। तो जो ये टेस्टिंग बायस है, इसको आपने ओवरकम करना है। तो उसके लिए भी यही मैं कह रही हूँ, मेथडोलॉजी पे फोकस कीजिए, रिसर्च टॉपिक्स जो हैं जेन्युइनली उठाइए, बी ऑनेस्ट टू द वर्क यू आर गोइंग टू बी डूइंग। America's greatest wealth does not lie in their lifestyle. It does not lie in their product and services. It lies in people they pick up, the most talented people they pick up, and they give them the opportunity to create. उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है। इसीलिए जब आप वीज़ा लेने जाते हैं तो यूएस एम्बेसी के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं। सब यूएस जाना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, खाली अच्छी लाइफ के लिए नहीं। बिकॉज मेरिटोरियस पीपल ऑल्सो गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, पीपल हु आर रिसर्चर्स ऑल्सो गो देयर। यू विल हार्डली फाइंड दैट लाइन फॉर वीज़ा बीइंग सीन आउटसाइड रशियन एम्बेसी और चाइनीज़ एम्बेसी और अदर एम्बेसीज। सो ये सिर्फ ये बात बताती है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको एक्सप्रेस करने की उस फ्रीडम के साथ, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ वहाँ मिलती है, कहीं नहीं मिलती है। मैंने जैसे कि बताया कि एनईपी में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और उस इनिशिएटिव्स का आप लोगों को भी फ़ायदा उठाना है। हाल ही में नीति आयोग में हम लोगों की एक प्रेजेंटेशन थी, डीन प्लानिंग और हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया। इट वाज दिल्ली वाइस चांसलर्स मीट विद नीति आयोग, और जब हमने उन्हें अपने रिसर्च के बारे में बातचीत की, हमने अपने सोशल साइंस में जो जो कार्य हम कर रहे हैं इसकी बात की उनके साथ, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। खासकर हमारे सेंटर देशिक के बारे में जब हमने बात की तो जो बहुत इम्प्रेसिव पॉइंट उन्हें लगा कि देशिक में इंडियन नॉलेज सिस्टम को की आर्काइविंग और रिसर्च का काम जिस पेस पे, जिस लेवल पे और जिस शिद्दत के साथ हो रहा है, दे फेल्ट टू अटैच टू द प्रोजेक्ट। सो नीति आयोग के 2 बड़े सीनियर मेंबर्स यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं और आकर के उन टीम को मिलना चाहते हैं, फैकल्टी से भी इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो वी वुड वांट दैट ऑल PhD स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स they should interact with them, and they would want to fund us on lot of projects from their side. मेरा मानना है कि सोशल साइंसेज रिसर्च उस हार्ट बीट की तरह है जो 24 घंटे हमारा साथ देती है, और पर इतना हमें एहसास नहीं होता कि वो हमारे साथ साथ इतना साथ हमारे मन का, शरीर का, आत्मा का दे रही है। पर जब वो बंद हो जाती है तो पता लगता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो सोशल साइंसेज रिसर्च उसी हार्ट बीट की तरह है। अगर वो किसी भी फील्ड में माइनस दी सोशल साइंस कोई रिसर्च होती है, वो बड़ी ड्रेडफुल है, डिवास्टेटिंग है और हॉरिफाइंग है। तो हमारे लिए ये बड़े सेलिब्रेशन की बात है कि हम एक यूनिवर्सिटी है सोशल साइंसेज फोकस के साथ, हमें वो फोकस मेंटेन करना है, पर अपनी रेलेवेंस को भी हमें समझना है। So congratulations to all of you for the community, research community who's here. And I hope you will also give us some good ideas about introducing good practices in order to have a better ecosystem in the university. Please send your suggestions and your recommendations to the Dean's office, and we will definitely be working on all that. रघु जी, आप आए, वो तो एक थैंक्स करना एक नॉर्मल बात है, पर तहे दिल से AUD फैमिली की तरफ से आपका बहुत 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 धन्यवाद। क्या बात है। मैं ज़रा सी एक लाइन ऐड कर दूँ। जब हम बच्चे थे हमारी माँ एक बात कहती थी, और हम बच्चे थे समझते नहीं थे लेकिन अच्छी लगती थी। कहती थी, आप ना मरिए तो स्वर्ग ना जाइए। ये वही बात कह रही हैं कि वो रिसर्च, वो पेपर वर्क जो इतना हुआ पड़ा है उसमें आपने ज़रा सा और ऐड कर दिया, क्योंकि आप मरे ही नहीं उसके लिए, आपने उसके लिए जान नहीं दी है, सिर्फ काम किया है। काम करना और जान देना, ये अनु जी उसकी बात कर रही थी कि जान दो, उसको अपना बना के उसमें
नई विजन ऐड करो आज की दुनिया की, तो स्वर्ग तभी मिलेगा। बहुत बढ़िया कहा। Thank you, ma'am, for sharing your rich horizon of thoughts with us. I think both the addresses today have converged towards the idea of exploration, acknowledgement of bias and limitations, yet looking for the possibilities that we can generate and illuminate. Thank you, ma'am, for always inspiring us through your words, messages, and most importantly, your belief in us. Thank you once again. And a lot of hard work goes into the planning of event of the magnitude like this. Hence, keeping the spirit of gratitude high in our heart, may I please invite our registrar sir for presenting vote of thanks for concluding our function. तो आप रेगुलर बेसिस पे जुड़ी यूनिवर्सिटी के साथ? जब भी कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो उसका एक प्रोटोकॉल लगा दीजिए एक सामान्य रूप से होता है कि कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, और कार्यक्रम का शुभारंभ होने के बाद बहुत सा ज्ञान यहाँ पे अर्जित हुआ, तो उसके बाद एक कस्टमरी एक प्रोटोकॉल है कि वोट ऑफ थैंक्स दिया जाए या धन्यवाद प्रस्तावना यहाँ पे पेश किया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये धन्यवाद आज देने का दिन नहीं है, क्योंकि आज जो यहाँ पे ज्ञान मिला है रिसर्च के लिए, चाहे वो हमारे आदरणीय जो हमारे आज गेस्ट हैं पद्म श्री रघु राय जी से, और उसके बाद हमारी माननीय कुलपति महोदय से, तो ये धन्यवाद यहाँ दे के बहुत छोटा शब्द हो जाएगा कि इतना ज्ञान जो यहाँ पे आज रिसर्च के बारे में अर्जित हुआ है, ख़ास तौर से हमारी फैकल्टी के लिए और हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है अपनी ज़िंदगी के अंदर में कदम उठाया है रिसर्च के प्रति, तो धन्यवाद बहुत छोटा शब्द यहाँ पे लग रहा है। तो इसलिए मैं भी एक बुद्धू की तरह, जो आज आपने हम सबको एक ज्ञान दिया कि हम सब का ये जो कंप्यूटर है, ये जो मस्तिष्क में है, ये इसके अंदर इतना कचरा भरा पड़ा है कि हम खाली एक ही परसेप्शन से चलते हैं, हम देखते नहीं हैं आसपास। तो सर आपका यहाँ आने के लिए और हमें ये एक नया आयाम दिखाने के लिए, जो आज आपने हमको चिंतन और चिंता करने का जो हमें एक नया और कोई शब्द नहीं मिलता है, तो धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा आपको। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत यहाँ आने के लिए, और हमें एक अच्छा स्वरूप जो आपने हमें रिसर्च के प्रति दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ में ये भी चाहूँगा कि आप इसी तरीके से आगे भी हमारे इस विश्वविद्यालय में आते रहें और हमें समय समय पे हमें बताते रहें कि हमारा ये जो कंप्यूटर मस्तिष्क है, इसमें से कितने रैम को हमें डिलीट करना है, कितने रैम को हमें फॉर्मेट करना है, और किस तरीके से हमको जो सही चीज़ है, जिस तरीके से आपने बताया कि अपने आँख को जब कैमरा लगाया तो आँख आपकी बड़ी हो गई, खुल गई, तो क्या ढूंढना है हमको क्या परसीव करना है और उसको किस प्रकार से सोसाइटी के अंदर में रिफ्लेक्ट करना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी माननीय कुलपति महोदय का, जो हमेशा से ही रिसर्च के प्रति इतनी जागरूकता दिखाती हैं, और ना ही खाली जागरूकता बल्कि समय समय पे हमें बहुत डांटती भी हैं कि क्यों रिसर्च के प्रति आप लोग जो हैं उसकी जो फेलोशिप है, उसका जो अमाउंट है, उसको क्यों कम करते हैं। मेरे साथ कंट्रोलर फाइनेंस भी बैठे हैं, इवन हम रिवाइज एस्टिमेट बजट के अंदर में भी मैडम का हमेशा ये रूप रहता है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो टीचिंग लर्निंग तक सीमित नहीं है भाई, उनको रिसर्च के ऊपर में सबसे महत्वपूर्ण उनका जो योगदान है इस समाज के प्रति। और जिस तरीके से आज उन्होंने यहाँ पे एक आह्वान किया सारी फैकल्टी को, सारे रिसर्च स्कॉलर्स को, कि कैसे हमें रिसर्च को आगे लेके जाना है, और ख़ास तौर से उन्होंने क्या क्या चेंजेस हमारे रिसर्च के, उन्होंने आज हमें एक आईना भी दिखाया कि क्यों हमारी भारतीय रिसर्च का कहाँ खड़े हैं, किस पड़ाव पे हैं हम, किस तरीके से हमको यहाँ पे उस भारतीय रिसर्च को चेंज की ज़रूरत है। उसके लिए हमेशा की तरह, क्योंकि आप ही हमारी मार्गदर्शक हैं, हमारे अंबेडकर विश्वविद्यालय की मुखिया हैं इस परिवार की, जो रिसर्च को आगे ले जाते हुए आपने इतने सारे रिसर्च के प्रति जो पिछले कई दिनों में, वर्षों में जो किया है, जिस तरीके से आपने फेलोशिप इंक्रीज़ करी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए सीड अमाउंट के जो ग्रांट होता है, जिसके जो अभी हम 1 लाख देते थे, अभी मतलब ये तो मैडम का वो है, उनको ही बताना चाहिए, लेकिन मैं अंदर ही बात बता देता हूँ कि हमारे ऊपर
हो चुका है मेरे और कंट्रोलर फाइनेंस पे कि आपको रिसर्च फंडिंग के लिए आपको रिवाइज करना है, ये सीड 1 लाख रुपया कुछ नहीं होता है। तो ऐसे नेतृत्व को, ऐसी शक्ति को जो रिसर्च के प्रति विश्वविद्यालय को अग्रसर कर रही हैं, उनको बहुत बहुत नमन। धन्यवाद तो कहूँगा नहीं क्योंकि वो तो हमारी परिवार की मुखिया हैं, तो धन्यवाद बनता भी नहीं, उनको हमेशा श्रद्धेय नमन आपको कि इसी तरीके से विश्वविद्यालय को आगे आप ले जाते रहिए। धन्यवाद वर्ड पता नहीं डीन आरएनसी के लिए क्या कहूँ कि धन्यवाद कहूँ या उनको कहूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आज इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है कि इतने सारे सब यहाँ पे शिक्षकगण हमारे जो हैं और हमारे रिसर्च स्कॉलर्स इतनी संख्या में आज उपस्थित हैं और ख़ास तौर से उनकी जो टीम है जिनके साथ इन्होंने सारा जो यहाँ पे प्रोग्राम को जिस तरीके से ये शोध उत्सव का आज आरंभ हुआ है, सॉरी बीच में कोई फ़ोन आ रहा है बड़ा इम्पोर्टेंट, योगेश सर का फ़ोन आ रहा है तो उसके अंदर में क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो रजिस्ट्रार होता है ना वो सबसे प्रॉब्लमेटिक पोस्ट होती है कि जितने भी फ़ोन होते हैं सब उसी को बचते हैं, पता नहीं क्यों तो वो अपनी उसको करते करते नितिन से जल्दी से माइक ले लिया जाए। हाँ मैम, वो आज धीरे धीरे इस टेम्पो में आ रहे हैं कि सारी पोल खोलेंगे ना होता क्या है कि बड़ा अटपटा सा लगता है कि कभी हम भी रिसर्चर थे और आज जो है हम लोग जो है प्रशासन में आने के बाद में जब माइक हाथ में आता है तो जो जिस तरीके से जब ज्ञान मिलता है इस तरीके का एनवायरनमेंट का, तो वो बातें बहुत सी निकलती हैं। खैर इसको संक्षिप्त में करते हुए अ वेरी वेरी बिग थैंक्स एंड फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस शोध उत्सव बाय the chair of the research this Shodhotsav, Dr. Parag and his team. I'll name the other people who are sitting over there and may not be over here. Dr. Yogesh Snail, Dr. Dheeraj Knight, Dr. Kanika, Dr. Gunjan, Dr. Mansi, and yes, the anchor of the today, Snigdha. So we also have our friends from media also here. From over here, thanks to you because there were certain questions, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो मीडिया द्वारा ही पूछे जा रहे थे, तो वो मीडिया के हमारे जितने मित्र यहाँ उपस्थित हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप हमेशा अंबेडकर विश्वविद्यालय में आते हैं और आते भी रहेंगे। और क्योंकि यहाँ पे ज्ञान ही इस तरीके से अर्जित होता है, इतना ज्ञान का वो आदान प्रदान होता है कि ये जो समाज के प्रति हमें जो एक इमेज है, जो एक मिरर है, वो यहाँ पे दिखाई देता है। धन्यवाद है पूरी डीन आरएनसी की टीम का भी, जो प्रशासन में भी हैं, जैसे डॉक्टर सुनीता त्यागी और उनकी पूरी टीम, यहाँ पे उपस्थित एसओ जो हैं हमारे, और यतेंद्र जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सारे डीन्स डायरेक्टर एंड सारी फैकल्टी का, क्योंकि शोध उत्सव रिसर्च स्कॉलर का महाउत्सव है, लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिए जो योगदान हमारे यहाँ के जो डीन्स डायरेक्टर्स और हमारी फैकल्टी करती है, उनको सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए तभी वो उसके प्रति में वो बन पाता है। तो सभी का धन्यवाद करते हुए पुनः आप सबका स्वागत है अंबेडकर विश्वविद्यालय के इस परिवार में, इस महाउत्सव में जो हमारा शोध उत्सव है। धन्यवाद। Thank you for this refreshing vote of thanks, sir. May I please request everyone to kindly rise up for the national anthem. मुझे गाना है। हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहें तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। क्या बात है, मजा आ गया, आपने बहुत बढ़िया समाप्त किया। Thank you everyone for being the most amazing audience. We can proceed further. Please join for lunch.